Yeah, hello. Guys, we will go for unit 4 of our subject. Okay. And in unit 4, we have Java beans. First of all, we need to understand what really the beans is. What is beans? We need to understand this and where this bean concept has been used. First, have this syllabus first. Okay. In our syllabus, we have completed this much of the part. Okay. Unit second and unit third. Now we are going to focus on this part, enterprise Java beans. Okay. In that we have a Java beans, creation of Java beans, its properties and its types and stateful and stateless. Two things are there. In the network we have concept of connectionless and connection oriented. Here it is stateful and stateless. So there is some connectivity within that. We will discuss, and there is one more concept entity. Then we will go for the JTBC. We discussed this thing in the previous exercise of web application architecture. Let me introduce this thing. This whole thing belongs to Java 2 Enterprise Edition, J2EE. This whole thing, this particular thing, this core Java thing, layout manager, and this one belongs to core Java. Okay, and this belongs to J2EE. And this belongs to web designing concepts, HTML, XML, CSS, JavaScript. This belongs to Java, web designing concept, and this belongs to Java, core Java. This comes to networking, and this belongs to J2EE. And these are the concepts, these are those concepts which is the backbone of the web technology. So clear-cut differentiation is there. We are studying backbone of understanding of web, one domain. Second domain is all about web designing, in which is contained HTML, CSS, XML, JavaScript. Okay, and all those technologies related to that. In third bracket we have core Java. In that core Java we have a networking as well, and finally, and finally in that bracket we have a J2EE. So this is the three main brackets of this subject, web technologies. Okay. Now let's go ahead. Now our focus is now. Our focus is now. Our focus is now this part. Our focus is now J2EE. So this is the Oracle. Initially it was developed by Sun Microsystems. Sun Microsystems has been acquired by the Oracle Corporation. And in Oracle Corporation we have a Java Enterprise Edition 6 tutorial. Within that, where this thing come, let's understand this. So let's start with the preface. Where this all concept will come, understand this. First of all, what this tutorial is? Tutorial is to guide to develop enterprise application for Java platforms. Enterprise edition using GlassFish Server open source edition. So here we are using GlassFish Server, and as well as is open source. Is open source mean to say that it is easily available? You haven't to pay any price. Okay. And they say that before we read this book, what is that? We need to have a this JDK, Java Development Kit, then GlassFish Server, then how Java programs will run each other, troubleshooting guides and all. Simple conventions are there. Let's do. And in general, you should have a server. Here it is a GlassFish server. In general, we use Tomcat on all. And then we need a JDK environment where we will run. Or we can go for some framework as well, like Eclipse, which is a product of an IB. That's why it is not written on here. But still, Eclipse is better one. And many more frameworks are there.
to understand Java program. Let's move. Now let's understand the introduction. Very important part. This introduction is very important part for next 2 units, to understand next 2 units. Developers today increasingly recognize the need of this important points: distributed, transactional, and portable applications. Right now, mobile application is distributed, transactional. We can transact money, Paytm, Google Pay, and all. The leverage the speed, security, and reliability in Google Pay or in Paytm or in PhonePe. We have speed, we have security, we have reliability of server-side technologies as well. So this development has been increasing. What enterprise application means? Enterprise application provides the business logic for an enterprise. What is business logic? Understand this term very carefully. Understand this term very carefully. What really this business logic means? Or have in your mind, in J2EE Enterprise Edition, we are working with business logic. They are centrally managed, often interact with enterprise software. Very important part is they are managed centrally. Very important part. These are the very important terms which we are using. Today's we need distributed transactional portable application. Okay. And to leverage the speed, security, and what we need from an application or web service, need of speed, of security, and reliability. So for the consent of distributed, transactional, and portable, we need speed, security, and reliability as well. We develop enterprise edition Java. Okay. And what is happening in the center this enterprise edition Java technology? We need to understand. In enterprise application, which provides the business logic for an enterprise. What this enterprise edition is doing is providing a business logic for an enterprise. Now, what is this business logic? Every business domain has the set of working, like we have a finance business, we have banking business, we have transport business. Set of procedures are there. Those set of procedures has been having we have understand this factory methods. We developed a factory method for that, and that factory method is implemented and is centrally managed by a server from which the distributed transactional and portable application having a speed, security, and reliability by its side. We get a word of enterprise software. With the help of this, we get a word of enterprise software. In the world of information technology, enterprise application must be designed, built, and produced for less money with greater speed and fewer resources. So this enterprise software, what are the properties of those enterprise software? Enterprise software must be designed for to build and produce in for
लेस मनी विथ ग्रेटर एक्सपीरियंस। मतलब कहने का ये है कि हमारे काम करने में पैसे भी कम लगे, हमारा ट्रांजैक्शन भी हो जाए, वो सेफ भी रहे, और हमारा रिसोर्स भी कम से कम लगे। आज एक मोबाइल से आप सब कुछ कर देते हैं, जो काम एक मोबाइल करता है 10-10 आदमी मिलकर नहीं कर पाते, तो रिसोर्स कम हो गया। So with the Java Platform Enterprise Edition, Java EE, development of Java Enterprise application has never been easier and fast. What is aim of Java Enterprise Edition platform is to provide developers a powerful set of APIs. Very important. This Java EE is providing powerful set of APIs. While shortening development and reducing application complexity, improving application performance. अब इस API की वजह से, इसी वजह से कहते हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग सीखने जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप प्रोग्राम के कोड सर्च कर लेते हैं या आप API ढूंढ लेते हैं और उस API को अपने सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर ओपन सोर्स है तो बस वो काम कर लेते हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि इससे क्या होता है, आपको समय कम लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है जो इन काम में आपकी मदद करती है। ये कई एक इंसान ने वो काम किया रहता है, उसको उस वेबसाइट पर डाल देता है, जिससे बहुत लोग उससे हेल्प कर देते हैं। अब आइए, वो ये जावा एंटरप्राइज की जो प्लेटफॉर्म है डेवलप कैसे हुई? जावा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड थ्रू जावा कम्युनिटी प्रोसेस, the JCP, which is responsible for all Java technologies. Community develop experts group composed interest parties have created Java specific requests (JSRs) to define various Java EE technologies. The work of Java community under JCP, Java community process, helps to ensure Java technology standard progress, stability and cross-platform compatibility. अब ये जो एक कम्युनिटी बनी जावा की, जावा कम्युनिटी प्रोसेस जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी बनी ना, इन्होंने कहा कि भैया हम जावा की स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट जारी करेंगे और इस स्पेसिफिकेशन पे जिसको जो जो मदद करनी है वो आ जाए। अब ये जो मदद करने वाले लोग हैं ना, वो इंटरेस्टेड पार्टीज काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि जावा टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड बने, किस चीज की? स्टेबिलिटी की एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। Now move. Java Enterprise Edition प्लेटफॉर्म्स और सिंप्लीफाइड मॉडल, ये भी तय है। और ये जो स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी है वो कैसे मिल रही है आपको? सिंप्लीफाइड मॉडल। जो काम चल रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करके उनके मॉडल्स में चेंज किया गया। XML डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर्स आर ऑप्शनल, है ना, कि आपको XML में डेटा एक्सचेंज करना है, वो JSON आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, तो एक ऑप्शनल हो गया कि भाई जरूरी नहीं है कि XML में ही बात करें, बहुत सारी और तरीके हैं काम करने के। Instead, the developer can simply enter information as annotation directly into the Java source file. तो ये annotation का कॉन्सेप्ट क्या है कि XML एक तरीके से XML का क्या है? XML का रिप्लेसमेंट है। आप उस XML को अपने एनोटेशन में डायरेक्टली एनोटेशन में डाल सकते हैं जावा सोर्स फाइल पे। इसको समझेंगे कि एनोटेशन क्या होता है। एनोटेशन क्या है भैया? XML जो एक स्पीड में ब्लॉकेज क्रिएट करता था, उसकी जगह जावा टेक्नोलॉजी ने एनोटेशन का यूज किया जावा सोर्स फाइल, ठीक। And the Java EE server will configure the component of the deployment and runtime. Java EE जो क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेंट्रलाइज्ड मैनेज्ड है, यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, तो ये जो जावा EE सर्वर है ये कॉन्फ़िगर कर देगा कंपोनेंट की डिप्लॉयमेंट और उसकी टाइमिंग, ठीक है।
कंपोनेंट की डिप्लॉयमेंट और टाइमिंग को वो मैनेज करता है। अब एनोटेशंस कहाँ पे यूज होते हैं? एनोटेशंस आर जनरली यूज्ड टू एम्बेड इन प्रोग्राम डेटा दैट वुड अदरवाइज बी फर्निश्ड इन द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर्स। कहाँ पे यूज होते हैं जी? एम्बेडेड प्रोग्राम जो हमें डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टर्स में। एनोटेशन कैसे काम करता है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कोड नेक्स्ट टू द प्रोग्राम के एलिमेंट अफेक्ट करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं कोड में, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो कैसे इफेक्ट होने वाला है, वही काम एनोटेशन करता है। तो अब देखिए डेवलपमेंट धीरे धीरे कर रहे हैं, हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं चीजों को, लेकिन स्टिल विद द एप्लीकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शनल एंड पोर्टेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसकी जो सर्वर साइड मैनेजिंग है उसको थोड़ा आसान बना रहे हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी को स्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और उस पूरे प्रोसेस में भी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। ये जावा डबल ई है। तो जावा डबल ई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैन बी अप्लाइड टू ऑल रिसोर्सेज विद द कंपोनेंट्स नीड effectively hiding the creation and look of the resource from the application code। आपको नहीं पता चलता है कि जब वो फॉर्म भरते हैं तो पीछे क्या चलता है, वो सब हाइड कर दिया जाता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैन बी यूज्ड इन ईजेबी कंटेनर्स। यहाँ से हमारा जो कोर्स है ये इस वजह से ही कभी कभी नई चीजें समझ में आती है जब हमको बैक की चीजें पता नहीं होती। यहाँ बैक की चीजें आपको पता चली ना कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या क्या ईजेबी में, ईजेबी कंटेनर, वेब कंटेनर्स, एप्लीकेशन क्लाइंट्स में आप डिपेंडेंसी का खाली इंजेक्शन डाल रहे हैं और उसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी कोड को उसको छुपा ले रहे हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शंस अलाउ डबल ई कंटेनर टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट रेफरेंस टू ऑर्डर रिक्वायर्ड कंपोनेंट रिसोर्सेज यूजिंग एंटोनेशंस। अब आपको समझ में आ रहा है, यही जो डिपेंडेंसी का इंजेक्शन आप पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर उसमें डेटाबेस में, एसक्यूएल इंजेक्शन के, एसक्यूएल इंजेक्शन वो टर्म था, उसी को एक तरीके से यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि ये जो कंटेनर है वो ऑटोमेटिकली क्या करता था, जो भी कंपोनेंट अवेलेबल है और उनको एंटोनेशन के हेल्प से उनको इनिशिएट कर लेता है। तो ये जो पूरा आपको एंटरप्राइज जावा का हमने जो थोड़ा सा बताया है ना, वो इसी वजह से बताया है कि आपको चीजें समझ में आए कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब हमको समझना है कि जावा जो जावा 6 है या जावा डबल ई है, उसमें क्या क्या हाइलाइट्स हैं, क्या क्या है, हाइलाइट्स क्या क्या है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। सबसे पहला हाईलाइट है कि मोर एंटोनेशन लेस एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स जो है का यूज करते हैं, सिंप्लीफाइड पैकेजिंग की गई है, पहले पैकेज बहुत टफ हुआ करते थे। फिर जावा एपीआईज को यूज करते हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज। एपीआईज का यूज बढ़ा है, हम बीन्स बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस यूज करते हैं, बीन को वैलिडेट करते हैं। तो इसीलिए न्यू एंटरप्राइज जावा बीन्स के कंपोनेंट में नई नई हमने फीचर्स को ऐड किया है, जावा सर्वलेट के नए नए फीचर्स को हमने ऐड किया है, जावा सर्वर फेसेस या जावा सर्वर फेसेस टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे एडिशंस किए। तो अब आप समझिए कि ये बेजर टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले स्टार्ट होता है बीन से, फिर बीन के बाद स्टार्ट होता है सर्वलेट से, सर्वलेट से स्टार्ट होता है जेएसपी से, चाहे जावा सर्वर फेसेस जो भी कहते हैं, पेजेस जो जनरेट और वो जावा सर्वर पेजेस कहते हैं, उसको मैनेज करती है जावा सर्वर पेजेस। अब कैसे स्टार्ट होता है जावा J2EE, जावा प्रोग्रामिंग और जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो पोर्टेबल होते हैं, सिक्योर होते हैं, डेवलपर के लिए बने हुए। तो काम कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो जावा डबल ई हम इसमें हर तरीके का कह लो के लिए, कस्टमर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, सप्लायर के लिए, पार्टनर के लिए, सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और इनकी इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोगों से छुपा लेते हैं, उनको सिर्फ वही दिखाते हैं, वही इंटरफेस दिखाते हैं जो उनकी जरूरत की चीज। इसीलिए बेटर कंट्रोल्ड एप्लीकेशन बना पाते हैं और बिजनेस को सपोर्ट कर पाते हैं, बिजनेस के फंक्शन में मिडिल में रह के, एंड टू एंड में नहीं है, वो मिडिल में रह के, ठीक है। और यही मिडिल टायर रिप्रेजेंट्स अ एनवायरनमेंट दैट इज क्लोजली कंट्रोल्ड बाय द इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, यही मेजर टेक्नोलॉजी का काम होता है मिडिल लेयर पे, तो कैसे उस चीज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। द मिडिल tier is typically run on a dedicated server. Hardware has access to full server, ठीक है। अभी मिडिल लेयर पे सब टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वहाँ उस हिसाब के सर्वर भी डेवलप करने पड़े, उस हिसाब से हार्डवेयर भी मैनेज करने पड़े, ठीक। इससे फायदा क्या होता है, हम लोग को स्केलेबिलिटी मिलती है, एक्सेसिबिलिटी मिलती है, मैनेजेबिलिटी मिलती है। तो J2EE मॉडल में काम करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, बिजनेस और प्रेजेंटेशन लॉजिक डेवलपर द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है और इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड सिस्टम सर्विसेज को यूज करते हैं जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे दुनिया में हो, और हम मल्टी टियर सिस्टम बना सकते हैं, वेब पे भी चलेगा, फोन पे भी चलेगा, सब पे चलेगा। अब देखिए, और ये जो चलेगा तो कैसे चलेगा और टियरिंग उसको कैसे करते हैं, तो ये भी कैसे मल्टी टियर एप्लीकेशन बनाते हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। एक चीज हम समझ चुके हैं, बिजनेस लॉजिक आप समझते हैं, एप्लीकेशन लॉजिक क्या चीज। Java EE platform uses a distributed multi-layer model for the enterprise application. Enterprise के application के लिए Java EE क्या क्या चाहिए होता है उसको, distributed multi-layer application है। तो ये application logic जो है उसको हम further कैसे divide करते हैं, according to the function and the component of the Java EE application, depending on the tier, multi-layer tier double environment to which the application components belong. अब देखो, अब ये जो Java EE एप्लीकेशन है ना, इसको दो, आप इसको इस फिगर से समझ सकते हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, एक है क्लाइंट टियर। क्लाइंट टियर हमारा क्लाइंट मशीन है। वेब टियर क्या है, कंपोनेंट्स रन ऑन द Java EE सर्वर। ये क्लाइंट टियर कहाँ पे काम कर रहा है, हमारे मशीन पे। अब एक और मशीन है सर्वर पे, उसी सर्वर पे वेब टियर किस में काम कर रहा है, एक कंपोनेंट में। फिर बिजनेस टियर रन ऑन द Java EE सर्वर, उसी सर्वर पे वेब टियर भी काम कर रहा है, उसी सर्वर पे बिजनेस टियर भी काम कर रहा है। लेकिन हमने अभी अभी डिस्कस किया था ना कि हमारा मेजर जो टेक्नोलॉजिकल फंक्शन है वो एक मिडिल लेयर की भी बात करता है, और जो मिडिल लेयर है उसको कहते हैं इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सर्विस, EIS। ये सॉफ्टवेयर सर्विस ऑन EIS सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। Although a Java EE application can consist of 3 or 4 tiers, the Java multi-tier applications are generally considered to be 3-tier applications because they are distributed over 3 locations. Client machine एक middle layer जो हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, the Java EE server machine and a database legacy machine in the backend, क्योंकि end of the day जो भी application वो centralized इस वजह से होगी, क्योंकि अगर database हमारा centralized नहीं होगा तो अलग-अलग distributed applications जो updates हैं वो एसिड प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो हमारा सेंट्रलाइज एंड ऑफ द डे हमारी लेगेसी मशीन को सेंट्रलाइज करना पड़ता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस जो डेटा है विद द कांसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड ऑल, उसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं और उसको मैनेज करते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, 3-tiered applications that run in this way extend the standard 2-tier client and server model by placing multi-threading application server between क्लाइंट एप्लीकेशन एंड बैकएंड स्टोरेज। तो यहाँ पे जो मल्टी थ्रेडिंग आप पढ़े थे उसका यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन सर्वर बनता है, जो वेब सर्वर बनाता है, जो हमारा बिजनेस लॉजिक का सर्वर बनाता है, जो हमारा एप्लीकेशन लॉजिक का सर्वर बनाता है, और वो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट का यूज करता है, और फाइनली वो क्लाइंट और बैकएंड स्टोरेज को उस हिसाब से मैनेज करता है। अब ये एक थोड़ा सा आइडिएट है कि हम एक्चुअली में जावा EE में करते क्या है, और ये हमारा एंटरप्राइज जावा भी, JDBC, जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी, जावा सर्वर पेजेस काम कहाँ आते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने एक एप्लीकेशन बनाया जो क्लाइंट को दिया, जो एक वेब पेज के सामने आ रहा है। बहुत सारे और एक एप्लीकेशन बनाया, 2 एप्लीकेशन बनाया, ये क्लाइंट साइड है। अब ये वेब टियर है, यहाँ पे जावा सर्वर फेसेस है, चाहे पेजेस कह लीजिए, जो वेब टियर में है। अच्छा, ये क्लाइंट मशीन है, ये जावा EE का सर्वर है, जो ग्लासडोर सर्वर अभी आपको बात हो रही थी। उस सर्वर को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। एक वेब टियर में आप JSP की काम कर रहे हैं, जावा सर्वर पेजेस, फेसेस पेजेस, ठीक है, और उसमें से आप बिजनेस लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं। वो बिजनेस लॉजिक क्या डिफाइन कर रहा है जी, एंटरप्राइज जावा बेस, एंटरप्राइज जावा बेस।
और एक और सर्वर है जिसको डेटाबेस सर्वर्स कहते हैं, जिसको EIS एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो डेटाबेस डिफाइन कर रहा है। तो जो ये कनेक्शन हो रहा है ना, ये जो कनेक्शन बिजनेस टीयर से EIS की तरफ हो रहा है, इसको कहते हैं JDBC। इसी को हम कहते हैं JDBC यहाँ पे। तो इसीलिए ये चीज हो गई थर्ड यूनिट, ये और बिजनेस लॉजिक से कनेक्शन हो रहा है, इसको JDBC। और रन टाइम जो मैनेजमेंट करता है ये पूरा सर्वर, इस पूरा सर्वर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कंटेनर में काम करते हैं, इसको कहते हैं सर्वलेट्स। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिट ऑफ 4 और 5 को बेसिकली J2EE है, इसी वजह से मैंने पहले J2EE इंट्रोड्यूस कर दिया आपको वो समझने के लिए। Although enterprise application requires platform-specific security measures in the application, the EE security non-enable security constraints to depend on the deployment. जब बनाते हैं तो environment के हिसाब से बहुत सारी चीजों को चेक करते हैं application deployment के समय, तो वो security constraints में होता है। Security constraints से कुछ चीजों को हम platform dependent भी करते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या-क्या component होते हैं Java application में? सबसे पहले समझिए Java EE component is self-contained functional software unit that is assembled into Java EE application, which is related classes, files, and that communicates with other components. ठीक है, Java EE component क्या होता है कि ऐसे component होता है जो related class, files से communicate करता है other components से। कौन-कौन से होते हैं जी Java EE specification के components? एक है application clients and applets are components that run on clients. दूसरा क्या है जी जावा सर्वलेट, यहाँ पे आ गई ना, ये तो अपलेट हो गई जो क्लाइंट एंड पे काम करेगा। ये क्या हो गया जी सर्वलेट, जावा सर्वर फेसेस, जावा सर्वर पेजेस, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट और वेब कंपोनेंट दैट रन ऑन सर्वर। ये क्या कंपोनेंट है जी वेब कंपोनेंट, सर्वर के जावा EE सर्वर के वेब कंपोनेंट। फिर आता है एंटरप्राइज जावा बीन्स कंपोनेंट और बिजनेस कंपोनेंट दैट रन ऑन द सर्वर। ये आपको समझ में आएगा, बिजनेस कंपोनेंट ये वेब कंपोनेंट, सर्वलेट और JSP क्या है वेब क्लाइंट। तो जावा EE क्लाइंट इज यूजुअली इधर वेब क्लाइंट और एप्लीकेशन क्लाइंट। ये तो समझ आ गया हो कि वेब क्लाइंट और एप्लीकेशन क्लाइंट होगा। वेब क्लाइंट कौन से होते हैं जी डायनामिक वेब पेजेस, various types of markup languages, HTML, so on, which is generated by web component content into the web tier. Web browser which renders the page receives from the server. Web client is sometimes called a thin client. Thin clients usually do not query databases, execute complex business rules, or connect a legacy application. When you use a thin client, such as heavyweight operations or offloaded to enterprise beans, executing on the Java EE server, where they can leverage security, speed, reliability of JavaScript server. अब आता है जी एप्लीकेशन क्लाइंट। एप्लीकेशन क्लाइंट मशीन में क्या होता है कि हम रिचर यूजर इंटरफेस देते हैं, जिससे वो टिपिकली GUI के हेल्प से, GUI के हेल्प जो स्विंग या AWT की हेल्प से बनाया जाता है GUI, वो कमांड लाइन हम क्या करते हैं GUI बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, जो हमारे एप्लीकेशन क्लाइंट को हेल्प करता है एक्सेस करने में रिसोर्सेज को। कमांड लाइन पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल लोगों को पता नहीं होता है कैसे मैनेज करना है, तो ये काम नहीं करते हैं। फिर आता है जी HTTP, application client directly access the enterprise means running on the business tier। तो वेब एप्लीकेशन क्लाइंट के बाद क्या आता है जी बिजनेस टियर। बिजनेस टियर में क्या होता है EJB। So application client can handle HTTP connection to stabilize connection with the servlet running the web tier. Application client written in language other than Java can interact with Java EE servers, enabling the Java EE platform integrate legacy system application and non-Java। फिर उसी कंपोनेंट में आता है एप्लेट। एप्लेट हम डिफाइन करते हैं वेब उस एम्बेडेड एप्लेट करते हैं जावा प्रोग्रामिंग स्मॉल क्लाइंट एप्लीकेशन होता है जो JVM, जिस मशीन पे JVM इंस्टॉल होता है वेब ब्राउजर को चलता है। तो ये एक काम है कैसे हमारा जावा बीन का काम, कैसे हमारा पूरा एक वेब क्लाइंट काम करता है जावा EE क्लाइंट्स में। कल को हम लोग देखेंगे कि जावा बीन का कंपोनेंट का आर्किटेक्चर क्या है, फिर वो जावा बीन के सर्वर पे कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट सर्वर है, फिर वेब टियर बिजनेस में, फिर वेब कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, फिर बिजनेस कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, फिर हमको पूरा आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा कंटेंट है वो क्या है। ठीक है, ये हमारा पूरा कंटेंट है, सर्वर, EJB, वेब कंटेनर, एप्लीकेशन। फिर हम चीज़ों को और डिटेल में समझें। ठीक है, जस्ट आई रिक्वेस्ट कि इसको रिवाइज जरूर करिएगा प्लीज।
इससे आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे, and it is easily available.